Hey, so let's look at Nifty 1 hour. If you're checking my post market videos, I had mentioned yesterday that I was looking for, after this move, this candle was broken. I was looking for a correction in this, and then I'll go long, or I'll do scalp longs during in intraday. So this gave this kind of a move where it came to yellow. So it gives you a very good opportunity to buy, which is what I did. And also, if you're looking at, so around when this was near highs, I had mentioned that I'm looking for a new low. And once if a new low comes in, this I had mentioned in TradingView chat, if a new low comes in, I will look for a buy for a new high, which is what happened, but the new low did not come. This was my reference for that trade for the new low. If you look at this, very similar to what happened. Let me just put this Nifty. Yes. So if you look at this, very similar to our pattern today. The only thing is it instantly comes down and by 12 close. So I had mentioned, this is the reason I had mentioned in TradingView that by 12 close, if this happens, I'll look for a buy. So this buy gives you a new high. If this had happened, I'd probably be a lot more profitable today. So yeah, so let's look at what was my trade in the afternoon, which I shared in TradingView, which also probably would have saved you money if you're looking at my ideas on YouTube or on TradingView. Let's look at that. So at 12:30, I mentioned that I'm looking for a long trade. If 12:45 is not at VWAP, I'll look for a long above 12:45. Now let's see what happens above 12:45. So 12:45 above is 892, stop loss is 872, 20 point stop loss, right? And this does not break high. This does not break high. This breaks high, and the high is almost 974, right? A 20 point trade. The only problem with this was if you look at my system which I was using to give this trade, it also touches VWAP, but I tweaked it so that it is very difficult to give video ideas 10 minutes before a trade happens. So I had to tweak it so that I don't, to be safer. But yeah, this was a really, really good trade. And but anyways, so let's look at Bank Nifty. If you're looking at Bank Nifty in terms of volumes, so these were the two candle volumes which were formed in the morning. And usually if a follow-up comes, then probably you could make some kind of a guess on what could happen. But these two volumes, low, especially the second one, the low was not broken and it was moving sideways. Though I did not trade Bank Nifty, but I was very, very careful if I was going shorts here. In terms of positional, now for some reason I don't want to long this. I want to short this, and I want to short this when today's high is broken. I will look for shorting opportunities in terms of intraday positional sells, probably for next 4-5 days. But I'll be very, very careful because this was the budget day high, and you have a lot of people waiting for this high to be to break. So I will be very, very careful in terms of shorting this. But I am interested in shorting this, and I am interested for Nifty to come around these levels, back to these levels. So if it goes, so what will be my criteria? Basically my system trades, if they come through, give me a shot, I will short this intraday, but not looking to do short on positionally. निफ्टी पोस्ट मार्केट देखते हैं 1 घंटे का. अगर आप मेरा पोस्ट मार्केट वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको मैंने कल बोला था कि ये जो अप मूव आई है इसका मैं करेक्शन का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एंटर करूँगा क्योंकि इसने इस कैंडल का हाई तोड़ दिया है. तो ये करेक्शन थी जो सुबह आई है, 20 MA टच किया इसने. इससे अच्छा मेरे ख्याल से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं था यहाँ पर. और उसी टाइम उसने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव दिया अगर आप देखेंगे तो. और उसके बाद मैंने यहाँ पर कहीं पर बोला था कि अगर 12 o'clock तक अगर ये फिर से नया लो बनाता है तो मैं बाय करूँगा. ऐसा हुआ नहीं. अगर होता तो काफ़ी अच्छा रहता क्योंकि आज प्रीमियम्स भी बहुत कम थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.
और फिर मैंने एक ट्रेडिंग व्यू में आइडिया पोस्ट किया था 12:45 के आसपास। आपको वो आइडिया देखना चाहिए, क्योंकि अगर देखा होता आज, तो आप एटलीस्ट जो भी शॉर्ट्स थे मार्केट में उससे थोड़ा और केयरफुल रहते। आइडिया ये था कि 12:45 के ऊपर, मैंने 12:30 को पोस्ट किया था ये, 12:45 के ऊपर मैं इसको बाय करूँगा और स्टॉप लॉस रहेगा 12:45 का लो। स्टॉप लॉस क्या है? 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। इस कैंडल ने नहीं तोड़ा है, इस कैंडल ने नहीं तोड़ा है, इस कैंडल ने तोड़ा है, और मैंने ये भी बोला था कि ये नया हाई बनाएगा, या फिर ये साइडवेज रहेगा या नया हाई बनाएगा। अब एक ही चीज़ मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया था कि ये वीवैप को टच नहीं करना चाहिए, और उसने वो वीवैप को टच करा। अगर आप मेरा रेफरेंस देखेंगे तो ये 12:45 भी वीवैप को टच कर रहा है, लेकिन क्योंकि इसने लो नहीं बनाया था, डे लो नहीं तोड़ा था इसने, तो इसलिए मैंने एक सेफ साइड में रहने के लिए ये डाला है। लेकिन अगर आप इसमें रिस्क भी लेते तो सिर्फ 20 पॉइंट का रिस्क था फ्यूचर्स में, तो ऑप्शन में तो और भी कम। तो बहुत अच्छा ये ट्रेड था, और इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे आइडियाज़ चेक देखिए। कभी कभी नहीं ट्रिगर होते, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन एटलीस्ट आपको अगर आप अपना सिस्टम के साथ इसको यूज़ करेंगे तो आपको एक प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, एक और एज मिल जाएगा इसके लिए। तो और ये सब फ्री में देता हूँ मैं अपने आइडियाज़ बेच नहीं रहा किसी, और मैं 1 साल से दे रहा हूँ फ्री पे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये था मेरा इंट्राडे। बैंक निफ्टी मैंने किया नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो सुबह ये जो 2 अच्छे वॉल्यूम वाले कैंडल आए थे यहाँ पर, इनका लो नहीं टूटा, तो इससे, और यहाँ पर बहुत दिन से कंसोलिडेशन कर रहा था और मैं निफ्टी में बुलिश था, तो इससे काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि मैं बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं करूँगा। बोलना आसान है, लेकिन मैंने ट्रेड किया ही नहीं है इसलिए बैंक निफ्टी क्योंकि बैंक निफ्टी क्या करेगा, यहाँ से लो तोड़ देगा और फिर यहाँ से उठाएगा इसको और हाई भी तोड़ देगा, और एक्सपायरी और था आज, तो इसलिए मेरे को वो टेंशन नहीं लेना था बैंक निफ्टी में। इसलिए मैंने निफ्टी में अपना ये जो मेरा ट्रेड था मैंने किया, क्योंकि सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ट्रिगर मैच नहीं हुआ, लेकिन 20 पॉइंट देने के लिए मैं तैयार था इसमें, और मैं एग्जिट करा। ये एक ट्रेड लिया मैंने, और एक जो सुबह मैंने बताया था, जो मैं पोस्ट मार्केट वीडियोज़ में मैंने कल बताया था, अगर आप नहीं देखते तो देखिए जाके, कि यहाँ पर येलो पे आएगा तो मैं बाय करूँगा 20 MA के आसपास। मैंने येलो नहीं बोला था, मैंने शायद 700 या कुछ और लेवल बोला होगा, लेकिन 20 MA शिफ्ट हो जाता है जैसे जैसे कैंडल्स बनते हैं, तो वो शिफ्ट होने की वजह से मैं एग्जैक्ट लेवल तो दे नहीं सकता पोस्ट मार्केट में, लेकिन 20 MA मेरा रेफरेंस पॉइंट था, स्टॉप लॉस था ये लो। ये भी मैंने शायद कल बोला था पोस्ट मार्केट में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बुलिश नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शॉर्ट करूँगा, मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूँगा आज का हाई टूटने के बाद, और मैं चाहता हूँ कि निफ्टी आए, स्पॉट आए 700 के आसपास, फिर मैं डिसाइड करूँगा क्या कर रहा है। पर अभी मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इसको बाय करने में। मैं वेट करूँगा इसका हाई टूटने के बाद, मैं डिसाइड करूँगा। कैसे डिसाइड करूँगा, देना मुश्किल है, पोजिशनल नहीं होगा ये, मोस्टली डे ट्रेड्स होंगे। तो मेरे सिस्टम्स में अगर आया शॉर्ट तो मैं शॉर्ट करूँगा, अगर नहीं आया तो मैं नहीं करूँगा। तो पोजिशनली मैं कुछ नहीं कर रहा अभी। अगर ये इसका हाई भी तोड़ता तो भी मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कि बजट डे का हाई है, लेकिन अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ लॉन्ग जाने के लिए।